Hello dear learners, welcome back to Abit Siksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Siksha. So let us begin. But before beginning today's session, I would want to wish you guys a very happy new year. 1 year has passed again, and we are entering into a new year with new enthusiasm, new energy, and new zeal to conquer the examinations and the all the obstacles in our life. So this marks the beginning of a new year, and new year obviously brings new set of challenges and new opportunities which needs to be conquered and needs to be needs to have a fresher approach in life. So with this I think we would start with the session again. The session is Today's session includes many topics from the entire world. First is excessive nitrates found in groundwater in 440 districts. In India, we would see because of use of fertilizers, some say because of use of fertilizers, we see excessive use of nitrates in the groundwater in 440 districts of India. Over irrigation, use of fertilizer leads to this kind of things, very problematic and something that we need to discuss about. Second, in school enrollment ratio down by 1 crore in 2023-24 says report. So the report has been released wherein the enrollment ratio in school has significantly come down. Why? We have to understand this. And third is states roped 54,800 to monitor online content, says report. So we have to understand about I4C. We have to understand about I4C as a body also. ठीक है, तो तीनों के तीनों न्यूज़ आज के इंपॉर्टेंट है. Let us begin analyzing one by one. First news is excessive nitrates found in groundwater in 440 districts. So the Central Ground Water Board estimates that there is first of all there is excessive groundwater extraction, and second is the groundwater which has been extracted has excessive nitrates which is very dangerous for the human health. Alright, तो यहाँ क्या न्यूज़ आया है? excessive nitrates have been found in groundwater in 440 districts. 440 districts में excessive nitrates जो है वो पाया गया है in from 359 such district in 2017. तो सेम रिपोर्ट 2017 में रिलीज हुआ था जिसमें क्या बताया गया था कि 359 जो है डिस्ट्रिक्ट्स में नाइट्रेट्स पाए जा रहे हैं, लेकिन अब उसका संख्या बढ़ के इट इज़ नाउ 440, काइंड ऑफ 100 डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो है यहाँ पर इंक्रीज हुआ है. और ये रिपोर्ट जो है कौन रिलीज करता है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB said on Wednesday. This is a health hazard particularly for young children, a source of environmental toxicity. तो ये obviously आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल है, स्पेशली बच्चों के केस में ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है. एंड वैसे ही बच्चों का इम्यून सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्रोमाइज, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. The data suggests that about 56% of India's districts have excessive nitrates, defined more than 45 mg per liter in groundwater, largely due to use of subsidized synthetic nitrogenous fertilizer, a key input for farming. तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारे जितने भी ऑलमोस्ट 440 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ना, यहाँ पर एक्सेसिव नाइट्रेट्स का यूज़ नाइट्रेट्स हमें पाया गया है, और इसका जो लिमिट है दैट इज़ 45 मिलीग्राम पर लीटर. इससे ज़्यादा जो है हमें पानी में नाइट्रेट्स घुला हुआ देखने को मिलता है. इसका मेन कारण क्यों है? क्योंकि हम लोग सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइज़र में जो है आपको सब्सिडी मिलेगा. हमेशा याद रखिएगा, फर्टिलाइज़र में बहुत ज़्यादा सब्सिडी होने के कारण बहुत ज़्यादा एब्यूज़ भी हुआ है आपके फर्टिलाइज़र्स का. ठीक है, फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा डाला जाता है जितना हमें चाहिए भी नहीं. हमारे एक्चुअल में नीड है 4:2:1 का रेशियो में, हमारे फार्मर्स डालते हैं 8:1:1 के रेशियो में. तो यहाँ पर अगर आप देखें यूरिया, ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो यूरिया में जो है नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है. उसके कारण यहाँ पर आपको पानी में घुल जाता है वो नाइट्रोजन, और वो नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण पानी में वो टॉक्सिसिटी जो है वो घुल जाता है. राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु reported highest nitrate contamination problem with 49, 48 and 37% respectively of their tested samples, reporting number beyond the safe limit. नंबर जो है यहाँ पे beyond the safe limit है. ठीक है, जितना होना चाहिए उससे कई ज़्यादा जो है ये अनसेफ है ये ड्रिंकिंग वाटर. राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग नाइट्रेट प्रॉब्लम विथ रिलेटिव लेवल्स फेयरली कांस्टेंट सिंस 2017. जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पर मतलब क्योंकि इंडस्ट्रीज़ भी है बड़ी बड़ी, और साथ में
ज़्यादा कल्टिवेशन भी होता है, उसके कारण जो है पानी में ये सिंस 2017 ही पानी में इतना ज़्यादा घुला हुआ है नाइट्रेट्स कि इट इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है, हम इसको सॉल्व भी नहीं कर पाए। However, regions in central and southern India are reporting an increased trend provoking worry. यहाँ पर जो सेंट्रल इंडिया के कुछ रीजन्स है एंड जो आपके सदर्न इंडिया के कुछ रीजन्स है, वहाँ पर जो है इंक्रीज हो रहा है आपका नाइट्रेट्स का लेवल, वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। महाराष्ट्र में 35.74, तेलंगाना में 27.48, आंध्र प्रदेश में 23.5, एमपी में 22.58 ऑल्सो shows notable increase of nitrate contamination pointing towards growing concern in central and southern regions of इंडिया। ये रिपोर्ट में बोला गया है कि यहाँ पर आप हर स्टेट में देखिए, यहाँ पर ये तो कुछ स्टेट्स थे ही, जैसे कि आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश तो थे ही, पर बाकी सारे सेंट्रल इंडियन स्टेट्स जैसे आपके महाराष्ट्र सदर्न सेंट्रल स्टेट है एंड तेलंगाना, ये सारे स्टेट्स में भी आपको इंक्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, विच इज़ वेरी वेरी वरीइंग न्यूज़, ठीक है। द मॉनसून टेंड्स टू इंक्रीज द नाइट्रेट लेवल्स विथ 30.77 ऑफ सैंपल्स contaminated in the pre-monsoon period compared with 32.66 आफ्टर रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में क्या होगा, ऑब्वियसली आप खुद भी समझ सकता कि एक तो पानी ऊपर से आ रहा है, एटमॉस्फेयर से रेनफॉल हो रहा है, एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन रहता है, वो तो अपने साथ नाइट्रोजन को लेकर आता ही है। सेकेंड थिंग इज यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारा जो रेनफॉल है, रेनफॉल में तो थोड़ा बहुत रहता है, इतना ज़्यादा नहीं कि आप एकदम हज़ार्डस हो जाए, लेकिन बारिश होता है तो फील्ड्स में पानी भर जाता है, फील्ड्स का पानी नाली से फ्लो करके वो रिवर में मिल जाता है, वी कंज्यूम डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर, राइट, नॉट डायरेक्टली एवरी टाइम, बट अंडरग्राउंड में भी वो पानी चला जाता है। रिवर्स में बहुत सारे फैमिलीज हैं जो रिवर से पानी को कंज्यूम करते थे। तो जब भी मानसून होता है वो आपके नाइट्रेट्स का जो लेवल है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। जब भी मानसून का सीजन आता है तो वैसे ही अपने आप ही नाइट्रेट्स का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। अदर मेजर केमिकल contaminants affecting ग्राउंड वाटर क्वालिटी आर फ्लोराइड एंड यूरेनियम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। फ्लोराइड आपको लग सकता है कि यूरेनियम कहाँ से आ गया ना, रेडियो एक्टिव मेटल, पर यूरेनियम भी पानी में पाया जाता है। फ्लोराइड तो बहुत ही कॉमन है, आर्सेनिक भी बहुत ही कॉमन है, पर यूरेनियम भी पाया जाता है। फ्लोराइड कंसंट्रेशन एक्सीड्स इन परमिसिबल लिमिट्स आर मेजर कंसर्न इन राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये सारी जगहों में फ्लोराइड्स का जो है एक्सेस है। फ्लोराइड्स की वजह से आपके दांत भी गिर सकते हैं, आपके बोन डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कमजोर कर देता है ये फ्लोराइड। राजस्थान एंड पंजाब रिपोर्टेड हाईएस्ट नंबर ऑफ सैंपल्स विथ यूरेनियम कॉन्सेंट्रेशन एक्सीडिंग 100 पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। तो यूरेनियम भी पानी में जो है ये देखने को मिला है, एंड ज़मीन में भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। एनीथिंग अबव 30 पार्ट्स पर बिलियन, यहाँ पर तो 100 है, एनीथिंग अबव 30 पार्ट्स पर बिलियन इज कंसिडर्ड अनसेफ एंड सेवरल ऑफ दीज सैंपल्स वेयर प्रीडोमिनेंट रीजन ऑफ राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, ये सारी जो रीजन जहाँ से भी सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, यहाँ सबसे पहले 30 पार्ट्स पर बिलियन से कहीं ज़्यादा था, 100 है, ठीक है। एंड दूसरी बात, ये वो जगह से पाया गया है जहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। सो इसके कारण बहुत ज़्यादा अनसेफ है हमारे रीजन्स जो है, इन एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी से काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए हैं, एंड ये जो है काफ़ी ज़्यादा अनसेफ जो है ये सिनेरियो हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियाँ, ठीक है, सम यू वुड सी इंस्टेंटली, सम बीमारियाँ यू वुड सी इंस्टेंटली, सम बीमारियाँ वुड टेक टाइम। आपके बुढ़ापे आते आते ही ये जो बीमारियाँ है ये भी अपने साथ साथ इंक्रीज होते रहेगी, जिसके कारण बहुत सी दिक्कतें जो है हम फेस कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक, और ये हमें सरकार को इसमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे, लाइक क्लीनिंग करना, अवेयरनेस जनरेट करना कि रिडक्शन ऑफ यूज़ ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइज़र, हमें सिंथेटिक की जगह वी हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स ड्रास्टिक शिफ्ट नहीं, बट धीरे धीरे करके हमें शिफ्ट करना होगा बायो फर्टिलाइजर्स की तरफ, जो कि इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा कि गवर्नमेंट किस लेवल पर क्या डिसीजंस लेती है, बिकॉज हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक फ्लिम्जी पार्ट है कि अगर हम लोग ने फर्टिलाइज़र को कमा दिया, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, फर्टिलाइज़र इंक्रीज होगा तो पानी में और ज़मीन में आपको नाइट्रेट्स का एक्सेसिव नाइट्रेट जो है वो देखने को मिलेगा। सो इट इज़ वेरी वेरी टॉपसी टर्वी, और बहुत फ्लिम्जी है कि हम कितना ज़्यादा हम सब्सिडी दे रहे हैं, कितना ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पर स्टेप्स नीड्स टू बी टेकन इन, एंड व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स वी हैव टू फाइंड इट आउट, ठीक है। तो
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद रखिएगा। अभी हम लोगों को सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के बारे में समझना है। ये क्या है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है एक एपेक्स मतलब नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साइंटिफिक सर्वेस, एक्सप्लोरेशन, मॉनिटरिंग करता है, डेवलपमेंट मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ कंट्रीज वास्ट अंडरग्राउंड रिसोर्सेज ऑफ इरिगेशन। ठीक है, हमारे जो इरिगेशन का जितना भी रिसोर्सेज है ना, जैसे ग्राउंड वाटर हो गया, रिवर वाटर हो गया, सबको ये जो है सैंपल को जो है ये स्टडी करता है, सर्वे करता है। और सिर्फ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज किन किन कारणों की वजह से इरिगेशन के लिए जो भी वाटर यूज़ होता है उसको चेक करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए और इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए भी इसे सर्च करता है। इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1954 में किया गया था। इसका फंक्शन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत जो है ये बॉडी आता है। इसका काम क्या है? टू डेवलप एंड डिसेमिनेट टेक्नोलॉजीज एंड मॉनिटर इम्प्लीमेंट नेशनल पॉलिसीज फॉर द साइंटिफिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं इसमें क्या है? इनका काम क्या है? पहला काम है सर्वे करना, सर्वे कंडक्ट करवाना, चेक करना कि किस जगह पर कितना नाइट्रेट्स का कॉम्पोजिशन है, कितना ज़्यादा घुला मिला है कि नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा। फर्स्ट इज डेटा कलेक्शन, सैंपल इकट्ठा करना, स्टडी करना। सेकेंड इज क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस है, व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस दोज इश्यूज। सेकेंड ये काम रहेगा कि क्या हमें करना चाहिए। थर्ड है इंफॉर्मेशन, डेटा कलेक्शन की क्या पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछला जो सर्वे हुआ है उसके कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। चौथा फॉर्मुलेट करना, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को बताना कि हम ये स्टेप्स जो है वो ले सकते हैं। तो इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्शन, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन में बहुत ज़्यादा इनका काम है। इनका काम एक्सप्लोरेशन है, असेसमेंट करना है, कंजर्वेशन है करना है, ऑगमेंट करना है, प्रोटेक्ट करना है हमें पोल्यूशन से। ठीक है, बेसिकली इनका काम है ग्राउंड वाटर, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, राइट, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ठीक है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, नॉट अथॉरिटी। ओके, तो ये क्या है? इनका काम क्या है कि वो पानी को, जो ग्राउंड वाटर है, बेसिकली ग्राउंड वाटर में जो भी पानी है एंड आसपास के रिवर के भी आसपास के जो पानी है उनके बारे में स्टडी करना, उनके बारे में अंडरस्टैंड करना एंड इकोलॉजिकली कैसे हम एफिशिएंट बने उसके बारे में इनका काम जो है मेजर रहता है। ठीक है, सो होपफुली आपको वो टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग स्कूल एनरोलमेंट। यहाँ पर स्कूल एनरोलमेंट पे क्या देखने को मिला है कि स्कूल एनरोलमेंट का जो नंबर्स है वो कम हुआ है। ठीक है, ड्रॉप हुआ है 2023 के कंपैरिजन में। 2023-24 में यहाँ पर 1 करोड़ बच्चों का जो है वो कमी हमें देखने को मिला है। देयर हैज़ बिन रिडक्शन ऑफ नियरली 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स जो कि एनरोल नहीं हुए। ये एनरोलमेंट जो है हमें गैप देखने को मिला है। तो लेट अस सी सरकार क्या कहती है इसमें। The total enrollment of students has dropped by 1 crore in 2023-2024. 2023-2024 इफ़ वी कंपेयर इट टू 2022 एंड 2023, तो 1 करोड़ बच्चों ने इनरोलमेंट कम किया है। तो वी हैव सीन अ ड्रॉप ऑफ इनरोलमेंट रेशियोज। ठीक है, और ये जो लेटेस्ट डाटा है कौन रिलीज किए हैं? ऑब्वियसली एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो है रिलीज किया है। अ टोटल ऑफ 24.8 करोड़ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द स्कूल एकेडमिक ईयर में जो है 2023-2024 में 24.8 करोड़ बच्चों ने जो है यहाँ पर दे हैव एनरोल्ड देमसेल्फ। और ये रिलीज जो है, ये जो डेटा है कौन रिलीज करता है? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, UDISE प्लस। ठीक है, ये बॉडी है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारे स्कूल्स के बारे में जांच करती है एंड देन वो एक इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत जो है ये बॉडी काम करती है। ओवर द पास्ट 4 years द एनरोलमेंट नंबर हैज़ होवर्ड अराउंड 26 करोड़, अराउंड 26 करोड़ के आसपास जो है नंबर रहता था। पर यहाँ पर इस साल 2024 में हमें डिप देखने को मिला है। एनरोलमेंट रेशियो जो है उसमें हमें कमी देखने को मिली है। एजुकेशन ऑफिशियल्स हैव सेड दैट इन द रिपोर्ट दैट द डेटा शो सम रियल चेंजेस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स एज द एक्सरसाइज ऑफ मेंटेनिंग अ सेपरेट स्टूडेंट बेस इज यूनिक एंड डिफरेंट एंड इनकम्पेरेबल फ्रॉम दैट ऑफ 2021-22। यहाँ पर बेसिकली सरकार ये कहना चाहती है, ये अगर आप पूरा आर्टिकल भी पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा, सरकार यहाँ पे ये कहना चाहती है कि एज दे हैव चेंज्ड द मेथड ऑफ काउंटिंग एंड कलेक्टिंग द नंबर्स को कलेक्ट करने और काउंट करने का मेथोडोलॉजी ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। ठीक है, फ्रॉम 2021 टू 2024 देयर हैज़ बीन अ चेंज। अब कैसे चेंज हुआ है? जैसे बच्चों का आधार कार्ड का कलेक्शन करना, ये सारी चीज़ें जो है मतलब डिजिटलाइज करने के कारण जो है ये नंबर हमें
जो है वेरिएशन देखने को मिला है। पहले क्या होता था, बहुत बार क्या होता था कि घोस्ट एंट्रीज जो है, यहाँ पर एग्जैक्टली मैं आपको समझा रही हूँ कि इस आर्टिकल में क्या है। बहुत बार गवर्नमेंट ये कहती है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट्स के नाम पे बहुत सारे घोस्ट एंट्रीज या एक्स्ट्रा एंट्रीज हमें देखने को मिली है, जो कि इस बार कम हुआ है बिकॉज ऑफ दिस UDISC का कॉन्स्टेंट पुश टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन। उसके कारण जो है जो घोस्ट एंट्रीज है उसको हमने रोका है और बहुत एक एक्यूरेट पिक्चर को ड्रॉ करने की यहाँ पे कोशिश की गई थी, इसीलिए यहाँ पर एक ड्रॉप हमें देखने को मिला है। ठीक है, द UDISC प्लस फैसिलिटेट्स ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ डेटा। ये इसी की बात करें हम, डिजिटलाइजेशन जो है ना, अपलोडिंग ऑफ डेटा एट स्कूल लेवल विद इन बिल्ट वैलिडेशन चेक्स एंड सब्सिक्वेंट डेटा वेरिफिकेशन एट द ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल्स। ये जो है, ये जो डेटा अपलोडिंग है ना, ये उसके साथ ही आपको वेरीफाई करके डेटा को अपलोड करना है। तो जब आप वेरीफाई करने के बाद आप जब डेटा को अपलोड करेंगे तो उसके कारण क्या होता है कि जो डेटा जो रिलायबल, ये जो डेटा है दिस इज मोर एक्यूरेट, दिस इज मोर रिलायबल, एंड इसीलिए आपको, क्योंकि घोस्ट एंट्रीज कम हुई हैं उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा 1 करोड़ के आसपास जो है वो नंबर आपको रिड्यूस होते हुए दिखेगा। एंड ये जो है सम टाइमली भी ये कंप्लीट करने के लिए हमें हेल्प करता है। थ्रू द क्रिएशन ऑफ यूनिक स्टूडेंट एंड टीचर आइडेंटिटीज, पहले UID यूनिक स्टूडेंट आइडेंटिटीज एंड यूनिक टीचर आइडेंटिटीज के कारण जो है हमें इसका जो लोगो, जो इंडिविजुअल्स है उनका क्रेडेंशियल्स के बारे में पता चला। एंड इकोसिस्टम भी क्रिएट हुआ है जहाँ पर सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड एवरीबडी इन द एंटायर एजुकेशन सिस्टम सब एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल जो है यहाँ पर साबित हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इनका मेजर वर्क क्या है यहाँ पे, वीडिंग आउट डुप्लीकेट और घोस्ट एंट्रीज, जो इसकी हम बात कर रहे हैं कि मतलब जो डुप्लीकेट या जो एक्स्ट्रा एंट्री हुआ है ना उसको हमने हटाने की यहाँ पे कोशिश की है, ताकि जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है लाइक समग्र शिक्षा स्कीम, PM पोषण स्कीम, नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है, ये सारे जो स्कीम्स है ये यहाँ पर जो बेनिफिशियरीज है उन्हीं को मिले और डबल की काउंटिंग ना हो, और जो ये जो बेनिफिशियरीज है उन्हीं के पास सीधा सीधा पहुँचे, इसीलिए ये स्टेप लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, while 2018-19 13.5 crore boys were enrolled, it saw a drop to 12.87 crore. ठीक है, एंड इन 2024 डिक्रीज ऑफ 4.87%, while enrollment रेशियो जो है ये 12 महिलाओं का, गर्ल्स का यहाँ पे, दिस इज फैक्ट, ओके, ये फैक्ट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 12.49 करोड़ इन 2018 टू 11.93 करोड़ इन 2024, डिक्रीज दोनों गर्ल्स एंड बॉयज़ के लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, States like Bihar, UP and Maharashtra saw among the highest drop in enrollment. Enrollment में सबसे ज़्यादा ड्रॉप्स जो है UP, महाराष्ट्र और बिहार जैसे स्टेट्स में सबसे ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला है। इन 2018-19 बिहार रिफ्लेक्टेड एन इनरोलमेंट ऑफ 2.49 करोड़ स्टूडेंट्स विद ड्रॉप्ड जो है यहाँ पर 2.13 करोड़। ठीक है, ड्रॉप्स जो है वो हमें देखने को मिल रहा है बिहार में भी, एंड फॉर दैट मैटर आसाम में भी। हमें जो है आज के न्यूज़पेपर में आया कि आसाम में भी काफ़ी सारा जो ड्रॉप्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यूपी में भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऑलमोस्ट 28-29 लाख बच्चे जो है ड्रॉप आउट हो गए। बिहार में ऑलमोस्ट 35 लाख बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट हो गए। महाराष्ट्र में जो है भी 18-19 लाख के आसपास जो बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट हुए हैं। ठीक है, बेसिकली ऐसा गवर्नमेंट कह रही है कि घोस्ट एंट्रीज जो है वो उन्होंने हटाने की कोशिश की, पर जनरली अगर आप देखें तब भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका एनरोलमेंट रेशियो बहुत बार होता है कि बहुत कम रहता है। ठीक है, क्यों, कभी बच्चे पढ़ नहीं पाते, कभी उनका पढ़ने का मन नहीं होता, कभी फैमिली प्रेशर्स के कारण, एंड समटाइम्स आउट ऑफ नेसेसिटी ऑल्सो दे आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल। तो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा पुअर रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एनरोलमेंट रेशियो को इंक्रीज़ करें ताकि बच्चों को जो एजुकेशन मिले ना, एनरोलमेंट रेशियो को इम्प्रूव करने के साथ साथ हमें एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स है उनको भी यहाँ पर इम्प्रूव करना होगा। नॉट जस्ट ऑन रोट लर्निंग, ये नहीं कराना है हमें, ना ही मेमोरी बेस्ड लर्निंग करवाना है हमें। एक्चुअली में क्या चाहिए, ठीक है, एक्चुअली में हमें हमारे पूरे सेटअप को, हमारे पूरे मार्केट को क्या चाहिए, मार्केटेबल हमें अप्रोच अपनाना होगा, एंड मार्केटेबल हमें लर्निंग करवाना होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग में हमें फोकस करना होगा, एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट आवर एजुकेशन सिस्टम इज सो इम्पार्टिंग एंड सो वेल वर्स्ड, एंड नॉट जस्ट बंधा हुआ नहीं है चार दीवारियों में। इट्स नॉट जस्ट बिटवीन द क्लोज फोर वॉल्स एंड द टीचर is explaining something and the students are not saying anything. It should not be like that. We should be we should
बी गिवन, आवर स्टूडेंट शुड बी गिवन सच गुड क्वालिटी एजुकेशन कि मतलब आपको कभी भी रोट लर्निंग करना ना पड़े, जो कि हमारे देश में ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। स्कोर के पीछे हम बहुत ज़्यादा भाग जाते हैं एंड जो एक्चुअल जो हमें चाहिए रहता है कि मतलब एक्चुअली में जो हमारे लिए जो अच्छा हो वो हम नहीं अचीव कर पाते, ठीक है। दोज स्किल्स जो दैट वी रिक्वायर एंड दोज सब्जेक्ट्स दैट वी नीड टू स्टडी आर नॉट बीइंग टॉट इन दिस स्कूल, सो उसके कारण जो है बहुत सारी दिक्कत रहती है। सो दैट वाज द न्यूज़। लास्ट न्यूज़ फॉर द डे, सेंट्रल स्टेट्स रोप्ड इन 54,800 टू मॉनिटर ऑनलाइन कंटेंट सेज रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी यहाँ पर मटेरियल, अगर यहाँ पर इतने सारे लोगों को बिठाया हुआ है कि वो कंटेंट को चेक करें, कोई भी कंटेंट जो है अगर वो इंडिया के सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के खिलाफ है, उसको फ्लैग डाउन कर दिया जाएगा, कहा जाएगा कि ये एक अनलॉफुल कंटेंट जो है ये बनाया जा रहा है, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स कम अंडर दैट मिनिस्ट्री, तो इन्होंने क्या कहा है कि बहुत सारे 54,800 ऑलमोस्ट 55,000 वॉलंटियर्स को जो है यहाँ पर बनाए, उनको बिठाया गया है। कोई भी साइबर क्राइम हो, कोई भी अनलॉफुल कंटेंट हो, उसको इंटरनेट से निकाल दिया जाए, इसके लिए ही ये एक पूरा एक ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C अंडर द मिनिस्ट्री लॉन्च द प्रोग्राम इन 2020 एमिंग टू ब्रिंग टुगेदर सिटीजन्स विद पैशन टू सर्व द नेशन ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म एंड कंट्रीब्यूट फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम इन द कंट्री। तो ये जो I4C है, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए, साइबर क्राइम, बुलिंग, हरासमेंट, ये सबको रोकने के लिए ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है इसको सेटअप किया गया है, जिसमें बहुत सारे लोग जो है वॉलंटियर बेसिस में भी काम करते हैं। इसका एक वॉलंटरी का फ्रेमवर्क भी है। साइबर वॉलंटियर फ्रेमवर्क इनेबल्स सिटीजन टू एनरोल एज साइबर वॉलंटियर्स। यहाँ पे वॉलंटियर्स के रूप में वो लोग काम करेंगे और वो रिपोर्ट करेंगे कुछ भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़, जो भी कुछ हो रहा है उसको हम फ्लैग डाउन करने की यहाँ पर कोशिश करें। और यहाँ पर क्या है, साइबर हाइजीन होना चाहिए एंड साइबर एक्सपर्ट टू एड लॉ इन्फोर्समेंट, ठीक है। तो यहाँ पर वॉलंटियर्स के साथ साथ जो भी लीगली जो भी मतलब अवेयर है, लीगली जो भी जिनको सब इन सब के चीज़ों के बारे में पता है, दे वुड हेल्प दोज वॉलंटियर्स, ठीक है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है ये जो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बनाती है, ठीक है। यूनियन के द्वारा ये जो इंडेक्स है ये बनाया जाता है। द रिपोर्ट स्टेट्स दैट 54,833 वॉलंटियर हैव बीन एनरोल्ड इंक्लूडिंग almost 23,000 reporting unlawful content, 22,000 awareness promoters and 9819 experts, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें क्या बोला गया है कि ऑलमोस्ट हमारे पास ऑलमोस्ट 55,000 जो है वॉलंटियर्स है, उसमें क्या है 22,000 ऑलमोस्ट 23,000 लोग जो है अनलॉफुल कंटेंट को रिपोर्ट करते हैं और साथ ही 22,000 के आसपास जो है अवेयरनेस जनरेट भी करते हैं। द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन is a digital liberties organization has criticized the scheme, stating that it will lead to a culture of surveillance and constant suspicion in the society, creating social distrust, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा जब आपके ऊपर अब because me and you, we are human, we have our subjective biases. For me, something that is funny might be something offensive for you and vice versa. So we have our own subjective biases. Now this is a volunteer of 60,000 people, almost around 60,000 people. Now imagine if something that is not so towards the safety of the country, and what if one of them also feels that it is unlawful, now they would flag down the post that you have created. Now उसके कारण क्या होगा, आप मतलब ये सोशल जो डिस्ट्रस्ट है, क्योंकि कांस्टेंट सर्वेलेंस होता रहेगा। इंटरनेट शुड बी अ प्लेस जहाँ पे फ्रीडम हमें मिलना चाहिए, पर यहाँ पर क्या होगा कि कॉन्स्टेंटली क्योंकि फ्लैग डाउन किया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक तो सोशल डिस्ट्रस्ट बनते रहे, दूसरा क्या हो सकता है कि दो कम्युनिटीज़ के बीच में भी जो है झगड़ा हो सकता है, दो लोगों के बीच में भी झगड़ा हो सकता है, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक दिक्कत भी हो सकता है, ठीक है। अ स्टूडेंट एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन गुजरात हु वॉलंटियर्स विद I4C said that during G20 conference last year in India, he along with other flagged several cyber attacks on government website and servers. तो ये गुजरात के एक स्टूडेंट ने भी कहा है कि उन्होंने बहुत सारे जो साइबर अटैक्स हैं उनको इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रोका। सो यू कैन सी द प्लस साइड्स ऑल्सो कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से काम करती है, वेरी डाइवर्स, बहुत सारा जो है डाइवर्सिटी जो है ये लेकर आने की कोशिश करती है।
वॉलंटियर्स जो है अपने आप को इस पोर्टल का नंबर क्या है, अगर अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं एज साइबर वॉलंटियर्स, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इन दिस वेबसाइट www.cybercrime.gov.in एंड फ्लैग अनलॉफुल कंटेंट। जो भी अनलॉफुल कंटेंट है उनको आप बिल्कुल फ्लैग कर सकते हैं। एनी मटेरियल अगेंस्ट सॉवरेनिटी एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, sovereignty and integrity of India, against defense of India, against security of the state and against friendly relation with foreign affairs, उनको आप बिल्कुल फ्लैग डाउन कर सकते हैं। इट विल ऑल्सो इंक्लूड्स कंटेंट एम्ड एट डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर्स। ठीक है, बहुत चीज़ें होती है, बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं, तो उनको भी आप फ्लैग डाउन कर सकते हैं। I4C क्या है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये एस्टेब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा टू डील विद साइबर क्राइम इन दी कंट्री। देश में साइबर क्राइम को रोकने के लिए ये इसको बनाया गया है। I4C फोकसेस ऑन टैकलिंग इश्यूज रिलेटेड टू साइबर क्राइम फॉर सिटीजन्स इंक्लूडिंग इम्प्रूविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड स्टेक होल्डर्स। इसका सेंटर कहाँ है? नई दिल्ली में। तो अगर जैसे कोई MHA से है, ठीक है, कोई हमें शायद मे बी डिफेंस के लिए हमें चाहिए कोऑर्डिनेशन हमें करना है, तो हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ भी जाके कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई लॉ से रिगार्डिंग है तो हम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर वो MSME से रिलेटेड है, अगर कोई अटैक कोई MSME के बड़े इंडियन कोई PSU पे आ रहा है तो वो जो हमारे PSU के सेक्टर्स है उस पर भी जा सकते हैं, MSME। तो बहुत सारे आप बैंकिंग सेक्टर के पास अगर कोई अटैक्स है देन यू कैन ऑल्सो इंक्लूड RBI इन दिस। तो यहाँ पर क्या होगा कि मल्टी सेक्टोरल जो स्टेक होल्डर्स है सबको एक साथ आकर हम जो है जो भी साइबर अटैक्स है, साइबर अटैक्स ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे MHA को ही जो वेबसाइट है उन्हीं को चाहिए होगा। साइबर अटैक कैन बी मेड, आपको पता होगा कि एम्स के सर्वर पे भी साइबर अटैक हुआ है। सो साइबर अटैक हैज़ नो बाउंड्रीज। आपको ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे हमें नहीं लग सकता कि साइबर अटैक नहीं हो सकता, वहाँ पर भी साइबर अटैक्स होते हैं। तो सारे स्टेक होल्डर्स को एक जगह पे एकत्रित करके इकट्ठा करके नाउ दे आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस इशू। ठीक है, कि साइबर अटैक्स को हमें रोकना है। सो एनी मिनिस्ट्री कैन कम एंड कॉन्ट्रीब्यूट एंड वहाँ पर जो है ये काम कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है लाइक कस्टम्स वाले एजेंसीज के साथ, ED के साथ, IB के साथ वो मिल के, पुलिस ऑफिशियल्स के साथ, CBI के साथ मिल के जो है ये साइबर अटैक्स को यहाँ पर रोक सकते हैं। ठीक है, इसका सेंटर कहाँ है? ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में इसका सेंटर है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये जो है टॉपिक समझ में आ गया होगा। प्लीज़ ये याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है। फंक्शंस क्या है? ये काम करता है एज अ नोडल पॉइंट्स फाइटिंग अगेंस्ट साइबर क्राइम। ऑब्वियसली आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम एंड नीड्स ऑफ LEA लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को टू टेक अप रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ताकि हम न्यू टेक्नोलॉजीज बनाएं। और जो भी एकेडमिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है इनको हम इंडिया और बाकी दूसरे इंटरनेशनल जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनके साथ हम मिलकर एक बहुत इन्वायरमेंट, एक ऐसा सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करें विच इज़ अगेंस्ट साइबर क्राइम। ठीक है, टू प्रिवेंट मिस यूज़ ऑफ साइबर स्पेस फॉर फर्दरिंग द कॉज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड टेररिस्ट ग्रुप। बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट ग्रुप इस पूरे साइबर स्पेस का, तो उसको हमें कम करना है। सजेस्ट अमेंडमेंट इफ रिक्वायर्ड इन साइबर लॉज टू कीप पेस विद फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजीज एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन, क्योंकि जो इनमें काम करते हैं ऑब्वियसली दे आर वेल वर्स्ड अबाउट द अटैक्स दैट हैज़ बीन मेड। तो अगर हमें कोई चेंज लाना हो तो वो इनके द्वारा जो है I4C से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और I4C टू दी रिस्पेक्टेड मिनिस्ट्री से भी ये बातें करके इसको, ये जो इशू है इसको रिजॉल्व हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साइबर अटैक्स जो है वो अपने आप ही चेंज होते जा रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के साइबर अटैक्स जो है ये कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं। ठीक है, सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।